Good morning, students. How are you? Hope you're feeling good at home. Students, from today, your summer vacation has started. You have to enjoy your summer vacation as well as you have to study more hard these days. If any student found any doubt in your physics, please discuss with me, students, and take seriously your studies at home. Students, we have started chapter vectors and we have discussed the properties of vector addition and subtraction of vectors. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोजीशन वेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पोजीशन वेक्टर? Position vector expresses the position of a particle at any instant of time. We draw position vector with respect to origin. For example, you have a point particle at point P in a plane. This is a particle P at particle P in a plane xy. To draw the position vector of this particle, we draw a position vector with respect to origin. This is a origin vector. ठीक है, its coordinate is 0 0 and its coordinate is xy. A vector drawn from origin, हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, that is from the origin to the position of particle at any instant of time. That vector is called the position vector. Its direction is from O to P. Okay, and we can find its displacement from these components. So how we can define position vector? A vector drawn from origin, that is the reason. यहाँ से हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया. A vector drawn from origin to the position of particle, at any instant of time in plane is called position vector. This is a definition of a position vector. Clear, students? Please note down this concept in your notebook. स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था. डिस्प्लेसमेंट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन. एंड हाउ वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट? दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको क्या बताता है? रिप्रेजेंट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन. कितना चेंज हुआ है इनिशियल टू फाइनल, दैट रिप्रेजेंट योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, फॉर एग्जांपल, you have a particle in a xy plane at a having coordinate x and y, and this is your position vector. अभी हमने डिस्कस किया था दैट पोजीशन वेक्टर. दिस इज द ओरिजिन. ये ओरिजिन है. दिस इज द पोजीशन वेक्टर. इस पोजीशन वेक्टर को मैंने नोट कर दिया और वेक्टर. ठीक है, सपोज कर लिया ये पार्टिकल आफ्टर ये टाइम एट टाइम t, this particle is at point P, and after time t1 particle is at point P1. After time t1 particle is at point P1. और इसका जो ओरिजिन से है दैट इज पोजीशन वेक्टर. इसका जो ओरिजिन से आपके पास होगा पोजीशन वेक्टर, दैट इज योर r डैश. क्लियर? टी टाइम पे पार्टिकल इस पोजीशन पे है. आफ्टर टाइम t1 पार्टिकल एट टाइम t1 पार्टिकल इज एट पॉइंट P1 हैविंग अ पोजीशन वेक्टर r डैश. तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट. तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कहां से हुई? P से P1 पे, पॉइंट P से पॉइंट P1 पे. तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. P1 इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकाल लेंगे कैसे? व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? दैट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज r वेक्टर डैश माइनस r.
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड हाउ विल वी फाइंड, देखो हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज किया था। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताते हैं कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides of triangle, then third side is represented by the resultant and that is taken in the opposite order. Given in this figure, this is the two sides of the triangle. These are the two sides of triangle and taken in the same order. These are in the same order, but third side is taken in the opposite order. Okay, तो अब इसको इस ट्रायंगल के ऊपर हम क्या लगाएंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फ्रॉम द ट्रायंगल OPP1, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज द two sides of the triangle, this is the resultant is represented by the third side of triangle taken in the opposite, so this is the resultant. तो आप क्या लिख सकते हो, OP1 is equal to OP plus PP1। OP1 की वैल्यू क्या है, R डैश, OP की वैल्यू क्या है आपके पास, R वेक्टर, एंड PP1 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो PP1 आपके पास क्या आ जाएगा, R वेक्टर डैश माइनस R वेक्टर, दिस इज योर सेम, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड हाउ विल फाइंड, बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो आपके पास सिंपली आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इट रिप्रेजेंट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, देखो दिस इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इसकी क्या थी, पार्टिकल P1 पे आ गया एट टाइम T1 पे, तो पार्टिकल की फाइनल पोजीशन क्या है P1, इनिशियल पोजीशन क्या है P, तो और फाइनल पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R डैश, और इनिशियल का जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है दैट इज R। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, यू कैन से फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिंपली रिप्रेजेंट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। तो यस, प्लीज नोट डाउन दिस। नल वेक्टर, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नल वेक्टर। जैसा कि आपको नेम से इंडिकेट है, नल वेक्टर हैविंग अ जीरो मैग्नीट्यूड एंड हैविंग नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसकी कोई भी सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होती, एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज जीरो वेक्टर। इट इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड जीरो डायरेक्शन, मतलब नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो वेक्टर की नल वेक्टर को आप डिफाइन कैसे करोगे, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नल वेक्टर। ठीक है, और इसलिए आपके पास यदि हम नल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से यदि हमारे पास ए वेक्टर है कोई, यदि हम उसमें हमें नल वेक्टर को ऐड करते हैं तो दैट इज योर ए वेक्टर। Addition of null vector to any vector gives the vector itself, आपको वेक्टर ही मिलता है। बट यदि हम नल वेक्टर के साथ किसी वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो दैट गिव्स आउट नल वेक्टर। ठीक है, हम जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं दैट गिव्स अस जीरो, तो आपके पास क्या हुआ, जीरो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन एनी वेक्टर दैट गिव्स अस जीरो वेक्टर। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द नल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके पास नल वेक्टर के लिए कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन इन दैट केस विल बी जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट योर चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है आपकी सेम, तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो, तो दिस एक्सेलरेशन इज योर वेक्टर क्वांटिटी, जीरो वेक्टर। तो acceleration of a particle moving with uniform velocity represent your zero vector। ठीक है, a particle having no displacement having velocity, यदि पार्टिकल की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैविंग नो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट योर नल वेक्टर, और वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो वी कैन null vector represent the number of physical quantities in your that you have been linked।
Okay, so this is a simple concept of the null vector. Please note down this. Now we will discuss resolution and components of a vectors in a plane. हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं, देन वी फाइंड इट्स कंपोनेंट. ठीक है, रिजोल्व करने का मतलब होता है द स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स को स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ गिवन वेक्टर, जो भी आपको वेक्टर गिवन है, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ गिवन वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स. Separating of vectors into two or more components and is called the resolution of vector. एक वेक्टर को टू और मोर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना, ब्रेक डाउन करना, दैट इज योर रिजोल्यूशन ऑफ दी वेक्टर्स. और जो कंपोनेंट्स मिलते हैं आपको, दैट इज योर, ये जो कंपोनेंट्स मिले दैट इज योर कंपोनेंट्स ऑफ दी वेक्टर. ठीक है, तो these components को हम क्या बोलेंगे, वो आपकी जो टू और मोर कंपोनेंट, दैट इज योर कंपोनेंट्स ऑफ दी वेक्टर. तो स्प्लिट करना वेक्टर्स को टू और मोर कंपोनेंट्स में. तो आपके पास सपोज कर लिया एक वेक्टर है ए वेक्टर. ठीक है, दिस इज द गिवन वेक्टर ए वेक्टर. इसको हमने स्प्लिट करना है टू और मोर फैक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स में. ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. ठीक है, इसको स्प्लिट करना है टू और मोर वेक्टर ए और बी में स्प्लिट करना है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, हम इसको इसके पैरेलल में एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज योर एन डी. नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एन डी. ठीक है, और इसके पैरेलल ले लिया हमने एन बी. ये आपका गिवन वेक्टर है, दैट इज योर ए वेक्टर. ठीक है, तो ए वेक्टर को हम कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं दिस इज योर ओ, दिस इज योर पी एंड दिस इज योर क्यू. तो आप क्या लिख सकते हो, बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ओपी प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू. एंड ओपी की वैल्यू क्या है आपके पास, एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, और ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर. तो ए वेक्टर टू फॉर्म्स में चेंज हो गया, एन ए प्लस एम बी. ठीक है, टू फॉर्म्स है. मतलब आपके पास कोई वेक्टर है ए, तो एम की वैल्यू एन एंड एम आर स्केलर्स, 2 and 3 कुछ भी हो सकता है. तो हम सिर्फ इसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड कर दिया. एक वेक्टर को क्या कर दिया, टू और मोर कंपोनेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट. दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर. और एन ए एंड एम बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स, दीज आर द कंपोनेंट. और हम इसके जो भी हैं एन एंड एम एक ही होंगे, मतलब आपके पास एक ही फॉर्म में, हम एक ही वेक्टर को एक ही फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं. There will be only one and one way in which given vector is separated into one or more two or more components. जैसे कि हमने सपोज कर लिया कि आपके पास, जैसे कि हमने सपोज कर लिया कि आपके पास ए वेक्टर है, दैट इज n1 ए वेक्टर प्लस m2 बी वेक्टर. हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. हमने सपोज कर लिया कि हम इस फॉर्म में, वहां पे nm कुछ है, यहाँ पे n1 और m1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे n1 और m1 है. ठीक है, तो इसको स्प्लिट करने की हमने यहाँ पे ये प्रूव करेंगे n1 और m1 ये सारे इक्वल हैं. कैसे, आपके पास ए वेक्टर क्या था, वहां से एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, n1 ए वेक्टर प्लस m1 बी वेक्टर. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n माइनस n1 ए वेक्टर इज इक्वल टू m माइनस m1 m1 माइनस m बी वेक्टर. क्लियर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n माइनस n1 ए वेक्टर माइनस m1 माइनस m बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. तो हम इसको a और b तो 0 नहीं हो सकते आपके, क्योंकि दिस आर द वेक्टर्स. ठीक है, तो आपके पास स्केलर्स n माइनस n1 इक्वल टू 0, m माइनस n इज इक्वल टू n1 एंड m इज इक्वल टू m1. तो मतलब कि ये दोनों स्केलर्स आपके एक ही होंगे, एक given vector के scalars. There is only one and only one way that a given vector can be separated into two or more vectors, and this is the resolution of the vector. एक given vector A है, उसको हम components में separate कर सकते हैं, that is your resolution of vector. And there is only one way to express these components. Clear? Thank you, students. Please do these topics in your notes.